Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 12 of Marketing Management. Under this particular marketing management, we completed the main point of this chapter, that is the marketing mix. Under that 4 P's we discussed, that means list was given in my lectures, but the first P, second P and third P, that was the product, price and place, that is distribution, already completed in last 3 or 4 different sessions. यहाँ पर हमने उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी पास ऑन की, राइट. नेक्स्ट एंड लास्ट पी अंडर द 4P, दैट इज द प्रमोशन. हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो चौथा पी है अंडर द मार्केटिंग मिक्स. लेट्स स्टार्ट विद दिस 4th P, प्रमोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, प्रमोशन इज एन important part of marketing mix. 4th part and 4th P. An important function of promotion is to provide information regarding new product to the existing consumers and the potential consumers. So here the particular producer or the manufacturer is providing the information related to his or her product to the new customers, यानी potential customers, consumers, or also to the existing consumers. तो they are providing the information about the product. सीधी तरीके से प्रमोशन के थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. In the process of the promotion, producer tries to explain to existing consumer as well as to the potential consumers for the purchase of product. So simple thing is there, through this particular promotion, they are always trying, producers or manufacturers are always trying to promote their product not only to the existing customers but also for the new customers that are, we can say in our language, they all are known as the potential customers, and maybe by fulfilling their needs, right, through the promotion process we are trying to explain to both the customers, right, और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सके ऐसा सोचते हैं. This converts whatever the information converted by the producer to the new and existing or maybe the particular potential customer, right. So we can say that potential customers actually become the consumers. Sometimes it happens that existing consumers are there, they are purchasing our product, by default they are our consumers, but somehow those who are the particular customers, consumers, those who are potential, they will convert themselves as actual. So promotion creates attraction towards the product when you are looking after through the different things, right, or whatever the promotion related type of the things are there. જ્યારે તમે એને જોશો, right, in a different way, so maybe you will be attracted, or companies trying to create attractions towards the product through this particular promotion. Through promotion, demand for the product can be increased, and also the business unit can create an impression in the market. So promotion is the best tool to increase the demand in the market. We can say different other things are there, but the main thing, that is the 4th promotion, right, we can say the marketing mix का सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा चलने वाला जो भी मिक्स है वो है प्रमोशन, क्योंकि उससे ही प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट होगी, और अनदर थिंग इज दैट कि इंप्रेशन हमारे मार्केट में एज अ प्रोड्यूसर बढ़ेगी. Now moving towards the next point, that is introduction to components. See, as we discuss marketing mix with the 4 different pieces, like that here in concept or in the promotion concept, some of the components are there. Promotion mix. So promotion mix is such a group of tools which provides the information about the product and services to the consumers and pursue them to buy the product. यानी उनको ललचा के, उनको कन्विंस करके या उनको रेडी करके प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है. तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स में यही है कि हम प्रमोशन मिक्स को फॉलो करेंगे, और प्रमोशन मिक्स में कई अलग अलग टाइप के टूल्स हैं. हमारे सिलेबस में जो 4 है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो उसका यूज़ करके हम हमारी प्रोडक्ट और सर्विस की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको रेडी करते हैं वो परचेस करने के लिए. प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी. याद रखना, जैसे मार्केटिंग मिक्स के 4 P थे, वैसे ही यहाँ पर प्रमोशन मिक्स के 4 पॉइंट है, राइट. APSP, याद रखना, APSP, है वो शॉर्ट फॉर्म है आपके लिए, APSP. सो दैट इज एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी. तो एवरी बिजनेस यूनिट यूजेस प्रमोशन टूल्स फॉर डिफरेंट एक्सटेंट. वो अपने हिसाब से ये प्रमोशन के जो 4 टूल्स है हमने यहाँ दिखा है, बोले नाम मैंने, राइट, उसको अपने एक्सटेंशन के तौर पर वो यूज़ करते हैं. प्रमोशन मिक्स
इज डिटरमाइन आफ्टर कंसिडरिंग एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ ये एग्जिस्टेंस जो भी हमारे कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, नए जो पोटेंशियल है जो आने वाले हैं, तो ये सब उनके लिए प्रमोशन मिक्स कैसे करना है वो कंपनी प्रोड्यूसर डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स द परचेज ऑफ प्रोडक्ट, नेचर के तौर पर कैसा है प्रोडक्ट के, और प्राइस के तौर पर। कई बार आपकी प्राइस ज़्यादा होती है तो उनको कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वॉट एवर दे आर यूजिंग एट प्रेजेंट, जो एग्जिस्टिंग है उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो नए वाले हैं, जो एक्चुअल बनने वाले पोटेंशियल कंज्यूमर्स है, उनको हमारी तरफ लाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ द वन थिंग, राइट। वो कंपोनेंट्स आएगा एडवर्टीजमेंट का, तो हम डिटेल देखेंगे। सो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, प्रमोशन मिक्स का एक फिगर दिया है, देख लेते हैं। ये रहा प्रमोशन मिक्स। प्रोड्यूसर और मार्केटर है, वी कैन से द मैन्युफैक्चरर इज दर, वो कंज्यूमर को गुड्स भेजेगा। हमने चैनल्स के डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू देख लिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। तो उसमें हमने ये भी डिस्कशन किया कि कैसे कैसे ये प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, एट 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 0 लेयर भी था। लेकिन उसके बीच में ये प्रमोशन मिक्स आता है, प्रोडक्शन के बीच में। एडवर्टीजमेंट है, सेलिंग प्रमोशन करना है, राइट, जिसको हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। पर्सनल सेलिंग कर सकते हो और पब्लिसिटी कर सकते हो, कोई भी चार का यूज़ करके, और चारों के चारों आप अलग अलग टाइप के यूज़ करके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एडवर्टीजमेंट। पहला जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं, एडवर्टीजमेंट। दैट्स द फर्स्ट प्रमोशन कंपोनेंट। ये कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, उसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उसको हम इसके प्रोड्यूसर या भी जो प्रमोशन के टूल्स भी बोलते हैं, राइट, उसके टाइप्स भी बोल सकते हो, कुछ भी आ सकता है, याद रखना। फर्स्ट वन, फर्स्ट टूल, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स इज एडवर्टीजमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। प्रोड्यूसर यूजेस डिफरेंट मीडियम टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट और सर्विस टू द पीपल। इट इज डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के विच टाइप, राइट, और विच मीडियम ही विल गोइंग टू यूज और ही इज यूजिंग और ही विल यूज इन द फ्यूचर टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट और सर्विस। तो मार्केट में जब आप एडवर्टाइज करना चाहते हो तो किस मीडिया से करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। So it can be said that the most important, famous and acceptable tool of promotion is advertising। ये एक दो मार्क के लिए याद रखो, राइट। एक मार्क के लिए खास याद रखो कि ये जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है और एक्सेप्टेबल टूल है। सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे टूल्स देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट अच्छा है हर कंपनी के लिए, क्योंकि उसको कोई इग्नोर नहीं करता है और एक्सेप्टेबल एवरीवेयर है। दैट इज द मेन थिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मेन medium, or we can say the particular main type of the mix, promotion mix of the one manufacturer or company. Let's start with the definition. Advertisement is paid form of non-personal information of goods and services in which advertiser's identity is easily traced। तो इसकी डेफिनेशन है, और मैं बोल सकता हूँ आप इसको ही लिखो एग्जाम में कि एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट जाहिरात जिसको हम बोलते हैं, वो पेड है ना, कोई मुफ्त में तो काम करता नहीं है। अंदर जो लोग काम करने आते हैं और हमारे तक पहुंचती है तो उसके लिए भी कंपनी ने कई पैसे खर्च किए होंगे। तो एडवर्टीजमेंट है वो पेड फॉर्म है। दूसरी थिंग, ऑफ नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं की जाएगी, राइट। वहाँ आपको सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच, जहाँ पर एडवर्टाइजर्स जो होंगे उसकी आइडेंटिटी आप इजीली ट्रेस कर सकोगे। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एडवर्टाइजर कौन है, जाहिरात जो देने वाला है, जो आप तक पहुँचती हो कौन है। दोज प्रोडक्ट्स विच हैव लो डिमांड इन द मार्केट कैन बी प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है, कौन सी प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट के थ्रू बेची जा सकती है जिसकी डिमांड लो है मार्केट में, तो उसकी जाहिरात, उसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगी तो शायद लोग उसको परचेस करें। एडवर्टाइजिंग कैन बी डन, ये मीडिया से, कौन कौन से मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग कैन बी डन थ्रू टीवी, रेडियो, डेलीज, जो डेलीज आते हैं, राइट, हमारे घर में न्यूज़पेपर आप बोल सकते हो, कोई भी चीज़ के जरिए, मैगजीन्स जो वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, फोर्टनाइट आते हैं। इंटरनेट अभी के लिए तो बहुत है, और अब तो सोशल मीडिया पर भी आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ डाल सकते हो और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, है। सो ये जो है वो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ज़्यादा काम बढ़ जाता है,
क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उनको नई नई कुछ ना कुछ देने के लिए नई एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, मार्केटिंग का काम भी बढ़ जाता है, वॉट एवर। लेकिन एडवर्टाइजिंग जो है इसके ये मीडिया से उसके थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। नाउ वी टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट हियर, रोल और फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या काम है, उसके फंक्शन कौन कौन से, उसका रोल क्या है। तो फर्स्ट वन, क्रिएट्स डिमांड। एडवर्टीजमेंट विल क्रिएट द डिमांड इन द माइंड्स ऑफ द एक्चुअल और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, या फिर हम बोले जो पोटेंशियल के उनके दिमाग में। सो थ्रू एडवर्टीजमेंट वन कैन गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट विच लीड्स टू राइज in demand for the product. So this type of the products are available in the market, right? Easily you can. So how it will create the demand in the market? So simple thing is that okay, advertisement will increase, right, the particular demand in the mindset of the people, or we can easily give the information about the product to them through the advertisement, and also the product is easily available, उसके लिए भी हम हमको information advertisement के through दे सकते हैं. So by default it will leads and rise in the demand of the particular product in the market. Consumers are informed about the different uses of a product. तो यहाँ पर consumers जो भी है हमारे पोटेंशियल है या एक्चुअल है जो एग्जिस्टिंग है, उन सबको प्रोडक्ट के अलग अलग यूज़ के बारे में बताया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड कॉफ़ी, अब हमको तो मालूम है कॉफ़ी पी जाती है, राइट, पानी गर्म करो उसमें कॉफ़ी डालो, दूध गर्म करो उसमें कॉफ़ी डालो, ये एक कॉमन थिंग है. लेकिन ये लोग अब कुछ नया देना चाहते हैं कॉफ़ी के यूज़, तो उसके हिसाब से वो एडवर्टीजमेंट में बताते हैं कि कोल्ड कॉफ़ी भी हो सकती है, राइट. तो उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस करके भी वो बना के आपको दिखाते हैं 2 या 3 मिनट में. 2 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, राइट. तो ये सब इन्फॉर्मेशन है कि उसके यूजेस ज़्यादा है, आप उसका ऐसा भी यूज़ कर सकते हो. फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एडवर्टीजमेंट बिकम्स इनएविटेबल, वो अनिवार्य हो जाता है. मार्केट में जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हो, सो कीप इन माइंड एडवर्टीजमेंट इज़ कंपलसरी, तो इट इज़ इनएविटेबल, जरूरी है आप लोगों के दिमाग में वो प्रोडक्ट पहुंचाओ. व्हेन कंज्यूमर्स गेट अ नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इनिशियली दे परचेज इट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. हम ऐसे लोग हैं, कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे, नया प्रोडक्ट होगा तो जनरली हम छोटा पैकेट ढूंढेंगे, वो छोटी क्वांटिटी में परचेस करेंगे फॉर द एक्सपेरिमेंटल बेसिस. तो उसको थोड़ा प्रयोगात्मक के तरीके से, राइट, आज एक बार यूज़ करी જોઈએ પછી સારું લાગશે તો પછી બીજું લઈશું. दैट इज़ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल. सो जनरली लाइक दिस ये होता ही है. और क्यों हम पैसे वेस्ट करें, अगर चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर ज़्यादा पैसे देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. ये भी मेंटालिटी कोई बुरी नहीं है. लेकिन कीप इन माइंड मोस्टली समटाइम्स the sellers are selling the particular products in initial time periods in small quantities, छोटा पैकेट. उसके बाद ही उसको पैकेट को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी डायरेक्टली लॉस करना तो नहीं चाहते ना, राइट. सो वो भी हमारी मेंटालिटी जानते हैं. तो नॉलेज प्रोडक्ट का बढ़ता है अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हो और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेस पर आप उसको परचेस करते हो. थस एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. तो ऐसे डिमांड बढ़ाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है. शायद 1-2 मार्क का प्रश्न आ जाए कि मार्केट में कैसे आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू पर्टिकुलर डिमांड क्रिएट करवा सकते हो. सो लाइक दिस इन्फॉर्मेशन दो इनिशियली, उनको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सेकंड वन, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. कैसे ये बेनिफिट मिलेगा आपको? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट वन कैन रीच टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स. हम ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो पोटेंशियल है. एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट गेट्स मोर रिटर्न देन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. तो जो अभी तक प्रोडक्ट नहीं भी परचेस करता था वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू करेगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा एक्चुअल पर्टिकुलर परचेज में, यानी वो बन जाएगा हमारा एक्चुअल कंज्यूमर. तो वो उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि बिजनेसमैन को एडवर्टीजमेंट कॉस्ट से भी ज़्यादा. सो दिस लीड टू हायर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो मार्केट में आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए. कई लोग एडवर्टीजमेंट देख के ही विदिन 1 आवर 2 आवर वो परचेस करने के लिए चले जाते हैं. अगर प्रोडक्ट नहीं है, अच्छी है तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ता है, तो हायर डिमांड बढ़ेगा तो हायर प्रोडक्शन होना चाहिए और उसका सप्लाई भी हाई होना चाहिए. सो दिस लीड्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी. सो अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में गुड्स जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी. एज पर दी अवर इकोनॉमिक थियरी स्टैंडर्ड 11 में आप सीख चुके हो, तो कीप इन माइंड दैट थिंग ऑल्सो. थर्ड वन, प्रोडक्ट अवेयरनेस. हमें प्रोडक्ट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही मालूम पड़ती है, मोस्टली टीवी के थ्रू, नाउअडेज थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ दी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में भी आता है.
So through advertisement, information about product and its advantages is given to the potential users. यहाँ पोटेंशियल वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. पोटेंशियल मीन्स दोज हु आर स्टिल नॉट द कंज्यूमर, वो एक्चुअल नहीं है, दे आर वेरी नियर टू बी एक्चुअल है, क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट के तौर पर हम खींचना चाहते हैं. कई लोग ऐसा होते हैं જોઈ લઈએ એકવાર, ચલો ને કેવું છે, કોઈ વાપરે પછી આપણે યુઝ કરીએ, તો દે આર ધ પોટેન્શિયલ. એ લોકો રાહ જોતા હોય છે કે ક્યારે એનું સારું રિઝલ્ટ આવે ને આપણે એ વસ્તુ લઈ લઈએ. सो समटाइम्स दे बिकम एक्चुअल और एग्जिस्टिंग इन अ लॉन्गर टाइम पीरियड, लेकिन शुरुआत में हम उनको पोटेंशियल बोलते हैं बिकॉज स्टिल दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दी आवर बिजनेस. सो एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट गेट्स मोर रिटर्न, सॉरी हम थे प्रोडक्ट अवेयरनेस पर. थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड इट्स एडवांटेजेस इज गिवन to the potential users. Also, sometimes consumers do not know how to use new product which can be done through advertisement. तो हम नए कस्टमर्स खड़े करने जा रहे हैं, पोटेंशियल को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में माहिती देनी पड़ेगी. दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, दे डोंट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट, सो वी हैव टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू द एडवर्टीजमेंट. सो व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ मोर देन वन यूसेजेस, देन थ्रू एडवर्टीजमेंट सच इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द पोटेंशियल कंज्यूमर. तो जो पोटेंशियल कंज्यूमर है उनको बताना पड़ेगा दिस प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन यूज़, यहाँ एक से ज़्यादा है इस प्रोडक्ट का यूज़, ये सिर्फ कोई एक चीज़ के लिए नहीं है, यू कैन यूटिलाइज फॉर सो एंड सो अदर थिंग्स टू. तो ये उनको बताना चाहिए और ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ एंड सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू. प्रोड्यूसर एंश्योर्स द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इंक्रीजेज द फेथ ऑन द प्रोडक्ट. तो आपको एडवर्टीजमेंट में बताना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है. आपने 6 टेट्रा पैक आएगा, मीन 6 लेयर होगा, तो उसमें आपने पैकिंग किया है. आप ISI ब्रांड बेचते हो, आप एकमार्क वाला बेचते हो, आप हॉलमार्क वाला बेचते हो, 916 बेचते हो अगर गोल्ड होता है तो, जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको उन तक पहुंचानी पड़ेगी. आप जो भी लोगो फसाई FSSAI आपको मालूम होगा, ये फुल फॉर्म मुझे देना, राइट. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है, उसके अंडर भी आप रजिस्टर किए हुए हो, तो ये सब आपको बताना पड़ता है कि हम यहाँ से फर्स्ट सर्टिफिकेट लिए है. सो ये सब उसके दिमाग में जाएगा, उसके बाद ही आपका जो भी पोटेंशियल कस्टमर कंज्यूमर है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की फेथ बढ़ेगी. बाय शोइंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, फेथ ऑन द प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड. सो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन यूजर्स का बढ़ाना पड़ेगा, और बाय शोइंग लुकिंग आफ्टर जजमेंट के उनका फेथ बढ़ा है कि नहीं, उनकी सेटिस्फेक्शन हुई है नहीं, कि दे आर सेटिस्फाइड और नॉट. उसके बाद दे आर मे बी द कंज्यूमर्स बिकम फेथफुल टुवर्ड्स अस. उनको हमारे ऊपर श्रद्धा आएगी, हम तो उनको बेच ही रहे प्रोडक्ट, हमारा तो ये काम ही है. दैट इज प्रोडक्ट अवेयरनेस. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये कैसे हो सकता है, कैसे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. सो ड्यू टू एडवर्टीजमेंट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्रीजेस विच लीड्स टू राइज इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए करना पड़ता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है. सो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा, इट लीड्स टू प्रोडक्शन, इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और अपॉर्चुनिटीज़. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो सही बात है, ये तो होगा ही, लेकिन पीपल एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग लाइक कॉपी राइटर्स, एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स एट्सेट्रा. सो यहाँ पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. दोज हु आर इन वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ द फील्ड, तो उनको भी हमें एम्प्लॉयमेंट देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. दोज हु आर फिल्म मेकर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बनाओगे तो ये तो ऐसे लोगों के काम नहीं है, प्रोफेशनल लोगों का काम है. उसको वीडियोग्राफी करना, एडिटिंग करना, एनिमेशन करना, जो भी करना है सब कुछ, राइट. तो इसके लिए हमें फिल्म मेकर्स चाहिए, उसके लिए कई लोग चाहिए, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए. तो इन सब का काम बढ़ेगा, और राइटर्स भी चाहिए, कॉपी राइटर्स जो होते हैं. तो ये सब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जीने का जरिया, जीने की तमन्ना, और वी कैन से कि कुछ ना कुछ तरीके से दे कैन इम्प्रोवाइज देमसेल्व्स. हाउ? सी, एडवर्टीजमेंट लीड टू नॉलेज ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर को मालूम है ये प्रोडक्ट कौन सा है, कई बार उसने ऐड देखी है, लेकिन अब उसका ये टाइम आया है कि उसको बेटर प्रोडक्ट्स कौन से, उसका नॉलेज मिलना चाहिए. तो हम वर्षों से हमारी कंपनी का गुड्स बेचते हैं, तो सबको मालूम है कि हम ये 100 बिस्किट बेचते हैं मार्केट में, है. तो अब उनको बताना है कि हमारा गुड्स अलग कैसे पड़ता है, हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट कैसी है. दिस अनेबल्स द कंज्यूमर टू यूज़ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. और ये सही मायने में तभी हो सकता है जब कंज्यूमर हमारी एडवर्टीजमेंट देखेगा. So through that one, consumer use the better quality goods. Better and improved products usage leads to improvement in the standard of living of the people.
So if you will provide the better goods, qualitative goods, then standard of living of the people will increase by default. वो अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं ना. ऑल्सो डे टू डे फंक्शनिंग बिकम्स ईजी, तो इजीली हर रोज़ का काम है वो भी उनके लिए ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट एंड लास्ट वन, मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम ऑफ सेल्स. हमें जो सेलिंग करना है उसकी जो क्वांटिटी है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं. सी कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग लीड्स टू रिमेंबरेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन कंज्यूमर्स माइंड. ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो कंज्यूमर के माइंड में थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े समय पर, एक एक घंटे में, दो दो घंटे में, या फिर विद इन दैट हाफ एन आवर वो 2 बार आएगी तो उसके दिमाग में ये एडवर्टाइजमेंट घुस जाएगी, है. तो कंज्यूमर्स माइंड में ये प्रोडक्ट भी घुस जाएगा ना. सो दैट इज़ द रीज़न वाई एट द टाइम ऑफ परचेज कंज्यूमर शोज अ प्रॉम्प्ट प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट मेंटेन्स द सेल्स एट कंसिस्टेंट लेवल. सो जब भी हम परचेज करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में वही प्रोडक्ट होती है जो हमने देखी हुई होती है. सो मोस्टली कंज्यूमर सोच द प्रॉम्प्ट, त्वरित, तुरंत बोलते हैं, पसंद की उतारता है अपनी, राइट. वो वही प्रोडक्ट पर उतारेगा ब्रांड पर, क्योंकि हमने उसको क्वालिटी दिमाग में बैठा दी है. दैट इज द रीज़न. तो दिमाग में क्वालिटी बिठाओ, दिमाग में प्रोडक्ट मत बिठाओ. प्रोडक्ट तो सबके दिमाग में है कि ये चीज़ है, आ वस्तु મળે છે એ ફલાણી ફલાણી કંપનીની છે, सो एंड सो कंपनी છે, दे नोस, राइट. लेकिन क्वालिटी बताओ उनको. सो जो क्वालिटेटिव कस्टमर्स है वो उसको तुरंत परचेस करेंगे, मॉल में जाके, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके, कहीं पर भी जाके, शॉप पर जाके, तो उनके दिमाग में वही आएगा और वो मेंटेन करेगा हमारा सेल्स एट कंसिस्टेंट लेवल. सो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट एडवर्टीजमेंट प्रूव्स वेरी इफेक्टिव टू विथस्टैंड कंपटीशन फ्रॉम द कंपिटिटर्स. ये स्टेटमेंट याद रखना. ये पूछा जाए तो आपको इसके रोल या फंक्शंस लिखने याद रखना. कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट के तौर पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है. तो यहाँ ये स्टेटमेंट याद रखो कि एडवर्टीजमेंट प्रूव्स वेरी इफेक्टिव मोस्टली इन एवरी फील्ड टू विथस्टैंड कंपटीशन. कंपटीशन को, अगर आपको कंपटीटर को साथ में लेके चलना है, कंपटीटर को पीछे रखना है, यार कंपटीटर से बहुत आगे निकलना है, राइट. सो फ्रॉम द कंपटीटर्स व्यू पॉइंट वी हैव टू प्रूव अवरसेल्व्स बेटर. मार्केट शेयर इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. तो वी कैन से दैट मार्केट शेयर वॉट एवर जो है वो बढ़ना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए. तो वो भी हमें मार्केट शेयर देगा, एडवर्टीजमेंट वो बढ़ाएगा. सो ये थी बात हमारे फंक्शंस या रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट की. अभी भी एक पॉइंट बाकी है एडवर्टीजमेंट, दैट इज ऑब्जेक्ट्स, एंड वी कैन से सम ऑफ द ऑब्जेक्शंस आर देयर, वी कैन से लिमिटेशंस द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट. तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, यानी उसका जो विरोध है, उसकी जो लिमिटेशंस भी हम कही जाती है वो 9 अलग अलग है. उसके बाद उसके 3-4 पॉइंट भी देखेंगे हम, है. उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर. तो आज के लिए बस इतना ही, राइट. नेक्स्ट सेशन हम चालू करेंगे द लिमिटेशंस और ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट. थैंक यू.